Namaste Gurukulyams. I hope you all are fit and fine. Students, in this video we are going to do some numericals based on drift velocity, resistance, resistivity and temperature dependence of resistance of the conductor. So student, let me start. First numerical you have given current time graph. IT graph is given to you like this. And it is 5, 10, it is 5, 0. So what you have to do, you have to calculate the total charge flowing during 10 seconds. Okay, 0, 5 second, 10 second, and maximum current is 5 ampere. So calculate total charge in 10 seconds. You know very well that charge is equal to current into time. So area of IT graph will give the charge flowing in the conductor. So IT graph we have, so we will calculate the area of IT graph. So in IT graph, this line and this line, the projection of this curve on the x-axis consists of one triangle and second rectangle. So area under IT graph, it gives charge flowing in the conductor. Area, it consists of triangle. The area of triangle 1/2. Base कितना है 5 and height कितनी है यहाँ पर 5. 1/2 base into height क्योंकि ये right angle triangle प्लस area of rectangle यहाँ पर कितना है इसकी लेंथ 5 और यहाँ पर ब्रेड्थ भी इसकी कितनी है 5, तो स्क्वायर हम कह सकते हैं इसको. तो 5 into 5 इट इज इक्वल टू 25/2 प्लस 25. क्लियर? इट विल बी 75/2, दैट इज 37.5 कूलम. क्लियर? So whenever IT graph is given to you, then what you have to do, you have to calculate its area, and its area is equal to charge flowing in the conductor. Clear? So second, in hydrogen atom, an electron moves in a orbit of radius 5 into 10 power minus 11 meter with speed of 3 into 10 power 6 meter per second. Find equivalent current. Clear? So whenever you have to calculate the current is equal to charge upon time. Charge upon time. Clear? In hydrogen atom, an electron, so charge is equal to charge on one electron. So value of charge we have E. Then what about T? T is not given. Clear? But in this question, radius and velocity of electron, these are given. If you look at the circular motion, this is the nucleus and this is the electron. It is revolving like this. Clear? So time taken to revolve one revolution, it will be equal to distance upon speed. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लो रिवॉल्व करता है यहाँ तक, तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया 2πr. इसकी स्पीड कितनी है v. So time period we will calculate with the help of r and v like this. So we will put the value of t in this expression. So I is equal to E upon t value 2πr upon v. So it is equal to EV upon 2πr.
क्लियर। और ये फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन एटम में मान लो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, क्लियर, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट करंट। आपको ये याद भी होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क इट कैन बी आस्क्ड, क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁻6, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, R वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻11। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I, क्लियर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, it is based on the drift velocity. These both two questions are based on the current. Now we are going to discuss the numericals on the basis of drift velocity. Estimate average velocity of electron in copper wire having area of cross section is equal to 10⁻⁻7 meter square, carrying current 1.5 ampere. So here up to now we have given area of cross section and current 1.5 ampere. Assume each atom contributes one electron. Given a resistivity of copper 9 into 10⁻³ kg per meter cube and atomic mass is equal to 63.5 U. Okay. Look carefully on the question. We have to calculate the average drift velocity with which electron will move inside the copper wire. Having area of cross section, copper wire का area of cross section हमें given है, current I हमें given है. Assume each atom contributes one electron. Clear? Density हमें given है, atomic mass हमें given है. ठीक है? तो drift velocity, the relation between current and drift velocity, we know very well that it is equal to I equal to NEAV into D. So look, I equal to NEAVD. N is the number density, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अच्छा, करंट मेरे पास है, E की वैल्यू हमें पता ही होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट. व्हाट अबाउट N? इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो इफ वी नो अबाउट द वैल्यू ऑफ N देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VD. ओके, N इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. It means unit volume में how many number of electrons are there. Clear? Okay. Density of copper is given 9 into 10⁻³ kg per meter cube. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? पर मीटर क्यूब में इतना मास कॉपर वायर का है. ठीक है. एटॉमिक मास हमें गिवन है 63.5 U. ठीक. ओके, जो एटॉमिक मास होता है 63.5 U यूनिट. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? 63.5 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जब भी आपको एटॉमिक मास यूनिट में मास दिया जाए, जैसे 63.5 U है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? 63.5 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है. ठीक है. ओके,
डेंसिटी कितना है 10 9 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, इन यूनिट वॉल्यूम यदि मैं मास देखूं 9 इंटू 10 पावर 3 kg है, ठीक है, यहां पर ग्राम है तो मैं इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 पावर 6 ग्राम, ठीक है। अच्छा 63.5 ग्राम में तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। और ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आएंगे उतने ही नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएंगे। और ये किस में होगा इन यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी दी गई है 9 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। सो इन यूनिट वॉल्यूम इन 9 इंटू 10 पावर 6 ग्राम में हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स वी हैव, वी विल कैलकुलेट लाइक दिस, ठीक है। सो ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मास, ठीक है। और ये मास किसका है यूनिट वॉल्यूम में, तो ये नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए आया है, एक यूनिट वॉल्यूम में हमने यहां पर नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए और हर एक एटम एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज n इज इक्वल टू 6.022 10 पावर 23 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाय 63.5। क्लियर? So in this way we have calculated the value of n. Now I equal to NEAVD. The value of I we have 1.5 ampere is equal to the value of n we have 6.022 10 power 23 into 9 into 10 power 6 63.5 E 1.6 into 10 power minus 19. Area of cross section 10 power minus 7 into VD. Clear? So from here we can calculate the value of VD. ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में कम से कम 3 या 4 बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन दैट इज नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर हमें दिया है कि एक एटम कंट्रीब्यूट करता है 1 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेता हूं, तो उतने ही यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और वो निकालेंगे कैसे, एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एवोगाड्रोस। अच्छा डेंसिटी हमें गिवन है 9 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है 9 इंटू 10 पावर 3 kg। सो वी विल कन्वर्ट इन ग्राम। सो यूनिट वॉल्यूम में इतना मास है, ठीक है। तो इतने मास में जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो किसके लिए आएंगे, यूनिट वॉल्यूम के लिए आएंगे, ठीक है। और जितने एटम्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। So number of electron per unit volume we have calculated. Now we have to put this value in this expression so we can calculate the value of VD. Okay students, in the same question if I ask that what is the value of current density, बच्चे current density क्या है J, it is equal to I upon A, current divided by area. Current given है 1.5 ampere, current 1.5, area 10 power minus 7, so 1.5 divided by 10 power minus 7. By calculating it we will have the value of current density that is J, ठीक। okay एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है मेन वो क्या आया था, VD इक्वल टू E कैपिटल E टाउ डिवाइड बाय M, ठीक है। अच्छा वी कैन राइट इट एज आल्सो E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V अपॉन L टाउ डिवाइड बाय M। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ,
अक्रॉस विच दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। दिस इज अ कंडक्टर, क्लियर है। तो इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V, लेंथ है इसकी L। हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल चेंज इफ V becomes 2V and L becomes L by 2, then calculate drift velocity। क्लियर। सो हमें यहां पर क्या बताना है कि जब कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल हम डबल कर दें और कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर दें, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या चेंज आएगा। ठीक है, okay, look, we have expression Vd equal to EV tau Lm। if V becomes 2V, so 2 into V, tau सेम है, L कितना है, L by 2m, so 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पहले से ही है, तो 4 टाइम्स EV tau Lm। तो ये क्या है, इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। So final drift velocity will become 4 times of initial drift velocity। अच्छा, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा यदि मैं पोटेंशियल को चेंज कर देता हूं या लेंथ ऑफ द कंडक्टर वी विल चेंज। Okay, now we will move on the concept of resistance and resistivity. So there is the question that two wires of copper and manganese, अच्छा manganese क्या alloy, and you know very well that resistivity of alloy is greater than resistivity of metal, have same resistance and same length। So we have to tell that which wire is thicker। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। अच्छा, 2 वायर है कॉपर मैंगानीन की, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, तो थिकर कौन है? थिकर वही वायर होगी जिसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। सो आर वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर। R1 इक्वल टू R2, R1 मैं कॉपर के लिए ले रहा हूँ और 2 इज फॉर मैंगानीन। R1 इज इक्वल टू रो 1 L1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू रो 2 L2 डिवाइड बाई A2। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें गिवन है सेम लेंथ, सो L1 विल गेट कैंसल आउट बाय L2 क्योंकि लेंथ क्या है यहाँ पर सेम है। सो वी कैन राइट रो 1 अपॉन A1 इक्वल टू रो 2 अपॉन A2। नाउ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू रो 2 अपॉन रो 1। ठीक है। अच्छा, रो 2 स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगानीन, रो 1 स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, एंड वी नो दैट रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। मैंगानीन की कॉपर से ज़्यादा है। इफ रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1 देन A1 is greater than A2. It means copper wire is thicker than manganese wire। ठीक।
Okay, next, a wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice of its initial length. Then calculate new resistance and resistivity. ओके, इन दिस क्वेश्चन वायर गिवन है 10 ओम की, उसको स्ट्रेच किया गया थ्राइस, यानी यदि इनिशियल लेंथ उसकी L है तो फाइनल कितनी है 3L। अच्छा, जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल गेट डिक्रीज, क्योंकि वायर को जब हमने स्ट्रेच किया तो उसका वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो जितनी लेंथ बढ़ती रहेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम होता रहेगा। ठीक है, ओके, यू हैव टू टेल द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। In video second, I have discussed about it that if we stretch the wire by n times, clear, then the new resistance will be equal to n square of initial resistance. So L को मैंने यहाँ पर कितना बनाया है 3L, ठीक है, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट इज 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, और पेपर में ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, सीधा कर सकते हो, लेकिन इफ इन 2 मार्क्स इट इज आस्क्ड, यू हैव टू फॉलो दैट मेथड एज वी हैव फॉलोड इन वीडियो नंबर 2। वीडियो 2 में मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कैसे इस हम करते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन रेजिस्टिविटी। बेटा, रेजिस्टिविटी कभी भी एरिया एंड लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, फिजिकल डायमेंशन पर वो कभी भी डिपेंड नहीं करती। एंड इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ और एरिया, then resistivity will get remain same। ये हमेशा ध्यान रखना बात, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। Okay, now आपको VI ग्राफ गिवन है इस क्वेश्चन में। ये फर्स्ट वायर के लिए इसको मैं लिखता हूं R1, इट इज फॉर सेकंड वायर R2। क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू टेल बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ दैट विच रेजिस्टेंस इज मोर, R1 or R2? Students, you know very well that I equal to V upon R, V equal to Ri. If you plot a graph between V and I, it should be a straight line, and it is straight line. So Y, X, it is slope. So slope of VI graph gives resistance, clear है? Okay, if you look at this and this one, slope of this graph is more than that of this, clear है? It means R1 is greater than R2। ठीक है, तो कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि VI ग्राफ आपको गिवन है, विच वन इज ग्रेटर। सो जिसका स्लोप हाई है वही रेजिस्टेंस क्या करेगा, हाई मिलेगा आपको। ओके, यहां पर एक और है क्वेश्चन। यदि मैं सेम वायर के लिए 2 एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक टेम्परेचर T1 पर, एक टेम्परेचर T2 पर। सपोज ये ग्राफ है T1 के लिए और ये ग्राफ है T2 के लिए, ठीक है, और फॉर द सेम वायर देन यू हैव टू टेल दैट विच टेम्परेचर इज हायर। बेटा, यू नो वेरी वेल दैट with increase in temperature the resistance of the conductor gets increases,
ये लाइन के लिए रेजिस्टेंस क्या हाई है, तो इसके लिए टेम्परेचर भी आपको क्या मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है। सो T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, अब आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। जो लाइन V के पास होगी उसका रेजिस्टेंस आपको क्या मिलने वाला, हाई मिलने वाला है। यदि इन दो लाइन को आप देखो, ठीक है, ये लाइन V के पास है, तो फॉर दिस रेजिस्टेंस विल बी हाइयर। सपोज इफ आई मेक ग्राफ लाइक दिस VI, मैंने ऐसे बनाया, तो ये लाइन V के पास है, तो सपोज ये मैं कहता हूं कि R1 और ये है R2, तो R1 R2 में से कौन ग्रेटर है, R1। ठीक, तो यहां पर एक शॉर्टकट मेथड हो जाता है, जो लाइन V के पास होगी उसी के लिए रेजिस्टेंस आपको क्या मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स we have two questions on the basis of temperature dependence of resistance, very important numerical in the view of CBSE। बेटा सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं देन फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है। Okay, look, RT equal to R naught 1 plus alpha delta T. It is a final resistance and at T temperature, resistance at 0 temperature 0 degree, one constant है alpha temperature coefficient of resistance, delta T change in temperature। हमने किया क्या, शुरू में टेम्परेचर था 0, हमने टेम्परेचर को T तक कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, T माइनस 0 T। क्लियर, तो T टेम्परेचर फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो इसी के बेस के ऊपर हम दो न्यूमेरिकल अब यहां करेंगे। पहला, द रेजिस्टेंस ऑफ platinum wire of platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm and at steam point is 5.4 ohm. When thermometer is inserted in hot bath, then resistance becomes 5.9 ohm. So calculate temperature of hot bath। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस प्लैटिनम वायर का गिवन है एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, 0 डिग्री। सो R0 इज इक्वल टू 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट इट इज 5.4 ओम। सो R100 इज इक्वल टू 5.4 ओम। ठीक है, व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ देन रेजिस्टेंस बिकम 5.9 ओम। जो हॉट बाथ है हमें उसका ही टेम्परेचर चाहिए। Let T is the temperature of hot bath। ठीक है, ओके, देन RT is given 5.9 ओम। ठीक है, क्योंकि हॉट बाथ का टेम्परेचर T है,
और उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमें गिवन है 5.9 ओम. सो वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ दैट हॉट बाथ एंड हेयर वन क्वांटिटी इज ऑल्सो गिवन अल्फा इज इक्वल टू 1.7 into 10 power minus 4. ठीक है. अल्फा क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ लुक R100 वी कैन राइट R0 RT. टेम्परेचर मैंने 100 ले लिया. R0 0 पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर. तो 0 से 100 किया तो चेंज कितने का आया 100 का. क्लियर. नाउ अब टेम्परेचर T के लिए यही काम करते हैं. इन R05 है, RT कितना है 5.9. सो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है, हॉट बाथ का टेम्परेचर कितना है T, तो T माइनस 0 यह आ जाएगा. फ्रॉम हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T. अच्छा इस इक्वेशन को देखें, इसको लिख सकते हैं हम R100 माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 100. ठीक है. इन द सेम वे वी कैन राइट इट एज RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा RT इंटू T. देखो R100 ऐसे कैसे, R नोड 1 से मल्टीप्लाई होगा तो R नोड प्लस R नोड अल्फा 100. इस R नोड को मैं इधर ले गया तो R100 माइनस R नोड. इन द सेम वे RT माइनस R नोड. ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड बोथ इक्वेशन. R100 माइनस R नोड डिवाइड बाय RT माइनस R नोड इज इक्वल टू अल्फा से अल्फा क्या R नोड डिवाइड बाय RT इंटू 100 ओवर T. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पर पैरामीटर देखना है. R एट 100 डिग्री टेम्परेचर इट इज गिवन. ठीक है 5.4 माइनस R नोड या R0 बोल देता हूँ इसे मैं. इट इज 5 ओम डिवाइड बाय RT 5.9 ओम माइनस R0 इट इज 5 ओम इज इक्वल टू R0 5.9 100 ओवर T. तो यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर T की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो आप हमेशा ध्यान देना जब भी हमें तीन टेम्परेचर की बात, हमारे पास तीन टेम्परेचर की बात की जाए, यहाँ पर R0 है, R100 है, RT है, तो तीन टेम्परेचर के लिए दो इक्वेशन लगेगी. एक तो R0 और R100 की, एक R0 एंड RT की. ठीक है. इक्वेशन कैसे लगानी है, फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R0 यानी इनिशियल जो टेम्परेचर है उस पर कितना रेजिस्टेंस है इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. डेल्टा T स्टैंड फॉर चेंज इन टेम्परेचर. सो इन दिस वे इन दिस क्वेश्चन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T. नाउ the next question we have a heating element using nichrome connected to 220 volt supply. एक हीटिंग एलिमेंट है निक्रोम का, उसको हमने कनेक्ट किया है 220 वोल्ट से. ड्रॉज इनिशियल करंट इट इज 5 एम्पियर एट रूम टेम्परेचर which settles after a few seconds to 4 ampere. What is the steady temperature of heating element if room temperature is 27 degree Celsius? ये देखते हैं.
Okay, next, heating element using nichrome connected to चलो 220 की बजाय मैं 200 ले रहा हूँ, 200 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज करंट 5 एम्पियर एट रूम temperature, which settles after a few seconds to 4 ampere. Then what is the steady temperature of heating element if room temperature is equal to 27 degree Celsius. बेटा यहाँ पर ना तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है, क्लियर, टेम्परेचर हमें निकालना है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ये तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन बेस करता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। अब रेजिस्टेंस कैसे निकाले, ध्यान से देखो, द हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई ड्रोज अ करंट 5 एम्पियर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ये, अच्छा रूम टेम्परेचर मैं इनिशियल मान लेता हूँ आर, चलो T1, आर T1 मैं इसको मान लेता हूँ। रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पावर सप्लाई 200 वोल्ट की है, करंट कितना है 5 एम्पियर, सो आर इज इक्वल टू 200 ओवर 5, इट इज 40 ओम। ये क्लियर हुआ। देन विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू 4 एम्पियर, कुछ सेकंड बाद वो करंट कितना बन गया, 4 एम्पियर बन गया। इसका मीनिंग क्या है, स्टीडी टेम्परेचर अटेन हो गया, क्योंकि उसके बाद करंट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग है टेम्परेचर की जो वैल्यू स्टीडी हो चुकी है। ठीक है, सो फॉर स्टीडी कंडीशन आर T2, T2 क्या है, स्टीडी टेम्परेचर, यही हमें निकालना है। और आर T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पावर सप्लाई 200 वोल्ट है, करंट कितना 4 एम्पियर, सो 200 डिवाइड बाय 4 इट इज 50 ओम। क्लियर। तो अब ध्यान से देखना, रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना 40 है, जब करंट स्टीडी हुआ 4 एम्पियर हुआ, टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट बन गया, उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना 50 है, तो इसका मीनिंग है रेजिस्टेंस जो स्टीडी टेम्परेचर है, सॉरी, वो रूम टेम्परेचर से क्या हाई है। ये क्लियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट T2। ओके, इन दिस क्वेश्चन वन मोर डाटा इज गिवन, अल्फा इट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, T2 माइनस T1। ये क्लियर हुआ। नाउ आर T2 इट इज इक्वल टू 50 इक्वल टू आर T1 40, 1 प्लस 10⁻⁻7 T2 माइनस T1। ये क्लियर हुआ। 50 ओवर 40 इज इक्वल टू 1 प्लस 10⁻⁻7 इंटू T2 माइनस T1, इट इज इक्वल टू 5/4 -1
इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 T2 माइनस T1, ठीक है। ओके, 5/4 माइनस 1 इट विल गिव 1/4। ओके, अब मैं क्या करता हूं, 10 पावर माइनस 7 को इसको नीचे ले आता हूं। सो इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सॉरी, यहां पर जो वैल्यू ऑफ अल्फा है ये 10 पावर माइनस 4 है। यस, ठीक है। तो 10 पावर माइनस 4 ये ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 10 पावर 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 मुझे निकालना है 10 पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 27, क्योंकि T1 क्या है, रूम टेम्परेचर है। जब यहाँ पर प्लस में होगा तो प्लस 27, आप इसको सोल्व कर लोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर T2। देखते हैं क्या आएगा। इट इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 4 प्लस 27, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे इट इज इक्वल टू 2527 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बार देख लेना कहीं गलती तो नहीं हुई है हमारे पास। RT2 सही है, RT1 सही है, 1 एज इट इज़, अल्फा एज इट इज़, T2 माइनस T1। 50 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 1 प्लस 10 पावर माइनस 4 डिवाइड बाई दिस, तो 1/4 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4 T2 माइनस T1। यस, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब भी आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंस के कोई भी क्वेश्चन आए, आपको केवल एक ही फॉर्मूला लगा लेना है, RT इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। So students, it is all about your numericals regarding current, drift velocity and temperature dependence on resistance, clear? अच्छा, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अप्लाई कर दूं तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी एक्वायर होती है। तो वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। एक बार देख लेंगे हम लोग। रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। बच्चों, मोबिलिटी क्या होती है, न्यू इक्वल टू VD अपॉन E। सो VD की वैल्यू क्या आ गई, न्यू इंटू E। ये क्लियर है। अच्छा, करंट इज इक्वल टू NEA VD, ठीक है, और VD की वैल्यू क्या है, न्यू E। सो NEA न्यू E। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, और आप ये भी कह सकते हो करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप V अपॉन L भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज। I hope you have understood this. In the next lecture, you will understand about the concept of cell, its internal resistance and terminal potential difference. Then after the combination of cells in series and parallel combination. Clear? Okay students, have a nice day. Thank you.